بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے تن من دن اولاد بھی واری حضور تو
زندگی ساری دا ساتھ نبایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے۔ حضرات محترم سامعین کرام، جیسا ہی محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے یہ وہ مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی ذاتوں کے اوپر تبرہ بازی بھی کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک آدمی نے برسر منبر اس صحابی کی توہین کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے افضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے اسی شخصیت کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ سازشیں، یہ ہمارے ایمان کا جائزہ، یہ تبرہ بازی، یہ صحابہ کرام پہ طعن و تشریح، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کا امن چھین لیا جائے، مسلمانوں کے اندر آپس میں خانہ جنگی شروع کرا دی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، سننے والی معززات مستورات، ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، یہ ملک پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لیا گیا تھا۔ آج اس ملک کے اندر ہم نہ کسی نبی کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی ولی کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کس شخصیت کو برا بلا کہا گیا جس کو سسر رسول کہا جاتا ہے؟ کون ہے وہ شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار کہا جاتا ہے؟ کون ہے وہ شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا جاتا ہے؟ اور یہ میں نے نہیں کہا، آسمان کے رب نے یہ اعلان کیا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف جو ہوتا ہے اپنے لیے ہوتا ہے، غم جو ہوتا ہے دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا تحزن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگ عبدالعزیٰ نام رکھتے تھے، جہاں حبل کے نام سے نام رکھے جاتے تھے، اس وقت بھی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
इनकी कुनियत अबू बकर है और वालिद का नाम उस्मान है, कुनियत अबू कुहाफा है, और इनकी वालदा का नाम सलमा है, अल खैर कहा जाता है। नसब नामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, अबू बकर के वालिद मुहतरम है उस्मान, उस्मान के वालिद मुहतरम है आमिर, आमिर के वालिद हैं अमर, अमर के वालिद हैं काब, काब के वालिद हैं साद, साद के वालिद हैं तैम, तैम के वालिद हैं मुर्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इनका नस्ब नामा 9 पुश्त में जाकर मिल जाता है। पता चला ये आपस में बड़ी रिश्तेदारी है। तो आइए, कौन अबू बकर जिनको लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, फरमाया अंत अतीकुल्लाह मिनन नार, तुझे अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है, इसलिए तेरा लक़ब भी अतीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक लक़ब अतीक भी है, दूसरा लक़ब सिद्दीक भी है, और ये सिद्दीक भी लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप ओहद पहाड़ के ऊपर है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, हजरत उमर उस्मान भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। पहाड़ ने हरकत शुरू की, वो पहाड़ जिसके बारे में कायनात के नबी ने कहा था आना उहिब्बु का, हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है। और पहाड़ झूम उठा, आपने अपनी एड़ी को मारा, फरमाया उसबुत या ओहद ठहर जा, तुझे नहीं पता फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदा, एक तुझ पे नबी है, एक तुझ पे सिद्दीक है और 2 शहीद है। पता चला लक़ब सिद्दीक किसने दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कौन शख्सियत है और किस शख्सियत को बुरा भला कहते हो, जिसकी 4 नस्लें सहाबी है, बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा बेटियां भी सहाबी, आगे से नवासे नवासियां भी सहाबिया। कायनात के लोगों, किस शख्सियत को आज बुरा भला कह रहे हो? सुनो तो सही, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनको इस्लाम लाने के बाद तो दूर की बात है, फरमाया करते थे जमाना जाहिलियत के अंदर भी ना मैंने कभी ज़ना किया था, ना मैंने कभी शराब पी थी। उस दौर में, जिस दौर पे शराब आम थी, उस दौर पे जिस वक्त माँ बेटी की तमीज नहीं थी, औरतें खुद आवाजें लगाती थी, उस दौर में भी जो पाक था उसे अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? एक दिन बाप ने कहा, बेटा ये बुत खाना है, ये हमारा खुदा है, इधर ठहरो मैं आता हूं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ हमारे रब, उस बुत को मुखातब करके ये जमाना जाहिलियत की बात बता रहा हूं। कहा, ऐ हमारे रब, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मुझे कपड़े दे दो। जब उसने आवाज न दी तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, कायनात के लोगों, जब अबू कुहाफा आया, बाप आया ना, तो बेटे की ये कैफियत देकर कहा, मैंने इससे पानी मांगा, इसने पानी नहीं दिया। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पुकारा नहीं बोला था। इस वक्त भी अगर कोई शिरक से बरी जिम्मा था तो वो अबू बकर ही था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? नबियों के बाद जिसका मर्तबा है उसे अबू बकर कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आसमान का रब कह रहा है। सुनी अल्लाह का कुरान, माल के कायनात का कुरान है। अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज के इस बात का तज़किरा फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम
नबीय्यीन, आगे क्या है, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ये दुनिया की भी बात है, क़यामत की भी बात है, सुनो। फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल किताबें तारी कर लेता है, हम दुनिया में तो इनाम देते ही देते हैं, कल क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं सिद्दीकों में सबसे पहला जो सिद्दीक था उसे अबू बकर कहते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होगा, उसे साथ मिलेगा। आइए सुनिए, और तस्दीक सिद्दीक तो खुद खुदा ने लक़ब दिया है। सुनिए अल्लाह ताला का कुरान सूरत ज़ुमर है, फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया एक सच लेके आने वाला कौन है, वो बोलो कौन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, एक सच की तस्दीक करने वाला वो कौन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया यही लोग तो मुत्तकीन हैं, यही लोग तो परहेजगार हैं। और सुनिए कौन है अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ज्ञानत तो देखे, और किस शख्सियत को बुरा भला कहते हो। और जरा देखो तो सही, एक दिन यहूदियों के माबद खाना है, वहां एक खतीब तकरीर कर रहा है जिसका नाम फखाद है और उसका मातरत अशिया है। वो तकरीर करते करते कहता है, हाय हाय मोमिनों का रब तो फकीर है, मालदार है। और देखो अल्लाह, वो मोमिनों का रब उनसे कर्ज मांगता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, जो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। इससे मतलब तो ये था जो सदका खैरात करे। उन्होंने कहा देखो मोमिनों का रब कर्ज मांगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उनके माबद खाने में चले गए और लोगों के मजमे के अंदर जाकर खतीब को पकड़ा, उसको थप्पड़ मारा, कहा तुम मेरे होते मेरे रब की तौहीन करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खतीब हो, तुम लोगों को वाज कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरे रब के बारे में तुम ये कहो कि मेरा रब फकीर है, हम मालदार हैं। थप्पड़ लगाया। सारे यहूदी इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए, कहने लगे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यार ने हमारे खतीब को थप्पड़ मारा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया गया, क्या इनको थप्पड़ मारा? कहा हाँ मारा है। कहा क्यों मारा है? कहा आका इन्होंने कहा था कि अल्लाह फकीर मालदार है। तो कहने लगे हमने तो कहा ही नहीं। खतीब भी मुकर गया, मुक्तदी भी मुकर गए, सारे उन्होंने कस्में उठा ली, हमने तो कहा ही नहीं है। अब सुनिए, अगर कोई लिखने वाला है तो लिखे, सुनने वाले है तो सुने। कौन है सिद्दीक? सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा का अब नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर गवाह लाओ। कहा यही गवाह थे, ये मुकर गए हैं, अब मैं कैसे गवाह लाऊं? कहा सिद्दीक गवाह दो, वरना तुम थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पता है तू सच्चा है, लेकिन ये अदालत मोहम्मद की है, यहाँ अदल चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि हमने अल्लाह की गुस्ताखी की है। एक उन्होंने कहा चलो जी कोई गवाह नहीं है। यहूदी आगे बढ़ा, थप्पड़ मारने के करीब तो आसमान से जबरील आ गए, कुरान नाज़िल हुआ। कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़।
अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया का किस को थप्पड़ मारने लगे हो? फिर क्या हुआ? सिद्दीक क्या गवाह? अगर जमीन से खत्म हो चुके हैं उसकी गवाही मैं रब देता हूं। इन्नल्लाह फकीर, इन्होंने कहा है लक़द समिअल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह ने इनकी बात को सुन लिया है। इन्होंने कहा है अल्लाह फकीर है, मालदार है। सिर्फ सुना ही नहीं, सनक्तुबु मा क़ालू, जो इन्होंने कहा है हमने इनके नामा अमाल में भी ये गुनाह लिख दिया है। और सुने, आका इनसे पूछे तुमने नबियों को कत्ल किया है? ये तो वो भी नहीं मानेंगे। ये तो नबियों का कातिल है, ये तो वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन सुने, वनक़ूलु ज़ूक़ा अज़ाबल हरीक़, हम तो इनको सड़कता हुआ अज़ाब देंगे, जला देने वाला। आओ सुनिए, और किस सिद्दीक को बुरा कहते हो जिसकी सच्चाई आसमान का रब देता है, जिसकी सच्चाई की गारंटियां कुरान देता है। अगर सिद्दीक को नहीं मानते इस कुरान की आयत का इनकार करना पड़ेगा। ये कुरान की आयत नाज़िल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही के लिए हुई थी। आइए सुनिए, कौन है सिद्दीक? नबियों के बाद अगर मर्तबा है तो किसका है? अबू बकर सिद्दीक का है। सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। सही बुखारी के अंदर आता है, एक औरत आई, कहने लगी आका मुझे ये मसाइल है, मेरे मसले हल कर दीजिए। आपने वो मसाइल बतलाए। कहने लगी अगर मुझे फिर जरूरत हो तो मैं आऊं? तो फरमाया तुम आ जाना। कहा आका आप अगर ना हुए तो? फरमाया अबू बकर, मेरा अबू बकर होगा, उससे पूछ लेना। कौन अबू बकर? दूसरा नंबर नबी ने अबू बकर को दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सुनिए, अमर बिन आस आए, यह भी सही बुखारी के अंदर हदीस है। अमर बिन आस कहते हैं अय्युन्नासी अहब्बु इलैका, आका आपको दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया आयशा। कहा मैं मर्दों की बात करता हूं, मिनल रिजाल, मर्दों में से। फरमाया मर्दों में से आयशा का बाप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पता चला नबी के बाद जिसका मुकाम है ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला गए। नहीं समझ आई? सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। उन्होंने वो है शख्सियत, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और बाद में भी कहा करते थे नबियों के बाद जो अफजल है अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर आगे चलिए, हजरत अली का बेटा, तुम्हारे घर से गवाही देता हूं, हजरत अली का बेटा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मोहम्मद बिन हनफिया, कूफे की मस्जिद है और मरकजी मस्जिद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हुए फरमाते हैं, इनका बेटा पूछता है कि बताइए नबियों के बाद अय्युन्नासी खैरु बादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर कौन था? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबियों के बाद जो था वो अबू बकर था सबसे बेहतर। फिर कहा उसके बाद, कहा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा उसके बाद, कहा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आइए ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गवाही, ये भी सही बुखारी के अंदर है। और आगे सुनिए, हजरत उमर बिन खत्ताब उनसे पूछते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बताइए नबियों के बाद किसका मुकाम है? तो क्या कहते हैं? सय्यदुना व खैरुना व अहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे बेहतर, हम में से जिसे हम सरदार मानते हैं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब था वो अबू बकर था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? अभी भी समझ नहीं आई? और मैं समझा देता हूं, अभी तुम्हारे घर की गवाही देता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं जिसका नाम हजरत हुसैन है। हजरत हुसैन के बेटे हैं अली है जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं जिनको इमाम बाकर कहा जाता है। इमाम बाकर कहते हैं कायनात के लोगों
सिद्दीक सबसे अफसल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और फिर इमाम बाकर रहिमहुल्लाह के बाद उनके बेटे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं मैं सिद्दीक अबू हजरत जाफर सादिक को सादिक कहा इसलिए जाता था कि उनकी निस्बत अबू बकर सिद्दीक के साथ थी। आप कहेंगे वो किस तरह? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे हैं, उनकी 4 बीवियां थी और 3 बेटे 3 बेटियां थी। उनमें से एक बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद है। अब्दुर्रहमान की शादी हुई, उनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिनका नाम अस्मा रखा। इधर मोहम्मद बिन अबू बकर की शादी हुई, उनका बेटा हुआ जिसका नाम कासिम रखा। कासिम और अस्मा की शादी हुई, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई जिसका नाम उम्मे फरमा रखा। उम्मे फरमा का निकाह किससे हुआ? सुनिए, हजरत हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के साथ हजरत उम्मे फरमा का निकाह हुआ और इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। और जाफर सादिक कहा जाते थे ये पत्नी अबू बकर मेरे दादा भी लगते हैं, मेरे नाना भी लगते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इनकार करोगे तुम अपने इमाम तो साबित कराओ। ये नस्ल चलती इसीलिए है, आज उनको पूरा बोला। आइए, कौन है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु? सिद्दीक जिसको बुरा कहते हो आज भी वो तो जन्नत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो मेरे और मिंबर के दरमियान, घर के दरमियान जगह है, अल्लाह ने उसे जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। बताओ आज कहाँ लेटे हुए हैं? हजरत सिद्दीक लेटे कहाँ हुए हैं? और सुनिए, हजरत अबू बकर कौन है? अगर उनकी तफसीर करता जाओ दिन गुजर जाए, रातें गुजर जाए, लेकिन उनके फजाइल बयान नहीं हो सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, आज कौन है? मन अस्बह मिनकुमुस साइमा, जो तुम में से रोजेदार है। अबू बकर पूरे मजमे में खड़े होते हैं, मैं रोजेदार हूँ। कहा आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? कहा मैंने खिलाया। कहो किसने? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। तीसरा कहा मन इत्तबअल जनाज़ा, किसने आज मुसलमान का जनाजा पढ़ा है? अबू बकर रज़ी अल्लाह खड़े हुए कहा मैंने पढ़ा है। चौथे नंबर पे फरमाया आज कौन है? वमन आदा मिनकुमुल मरीज़ा, जिसने किसी बीमार की तीमारदारी की है। तुम्हें तो पता नहीं है ना, भाई का हाल पूछने के लिए तैयार नहीं हो, बहनों का हाल पूछने के लिए तैयार नहीं हो। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो तीमारदारियों में सबसे आगे था और कहा मैंने तीमारदारी की है। जिसके अंदर ये सारे काम हो वो जन्नत में ही जाएगा। और कहाँ जाएगा? वो जन्नत में ही जाएगा। तो आइए सुनिए, ये भी सही बुखारी की, अगली भी हदीस सही बुखारी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अनफक ज़ौजैन, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जोरा जोरा खर्च करता है, यानी एक बंदे ने 1000 रुपये देना, अल्लाह वो 500 देता है जोरा। इस तरह एक बकरी देनी है, 2 बकरियां जोरा देता है। और इसी तरह जोरा एक कपड़ा देता है, किसी को 2 सूट ले देता है। तो फरमाया ये जोरा जोरा चीज को खर्च करने वाला जन्नत के 8 दरवाजों से उनको आवाज आएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पास बैठे हुए थे, कहने लगे आका जन्नत के दरवाजे में तो एक से ही गुजरना है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी खुश नसीब है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? फरमाया अर्जू अन तकूना मिनहुम, अबू बकर मुझे उम्मीद है तुम भी उनमें से होगा, तुम ही भी उनमें से होगा। कौन अबू बकर? जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अबू बकर है? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे रईस बाग में थे, यह भी सही बुखारी की हदीस है। बाग में है, मैं आपका पहरेदार बनता हूँ, दरवाजा खटखटा है। मैंने कहा आका बाहर कोई दरवाजा खटका रहा है। फरमाया जो भी आया उसको जन्नत की बिशारत भी दे दो, अंदर भी आने की इजाजत। कहते हैं मैंने दरवाजा खोला, सही बुखारी की हदीस पढ़
रहा हूँ। दरवाजा खोला, सामने अबू बकर है। कहा तुम्हें जन्नत की बशारत हो, आ जाओ अंदर। दूसरे नंबर पर फिर दरवाजा खटखटा है। पूछा कौन है आका? फिर को दरवाजा, मैं उसको भी जन्नत की बशारत दे दो और अंदर आने की भी इजाजत दे दो। देखा दरवाजा खोल के उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे नंबर पे फिर दरवाजा खटखटा है। कहा आका फिर खटखटा है। फरमाया उनको भी जन्नत की बशारत दे दो साथ मुसीबतों के साथ। दरवाजा खोला, सामने उस्मान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कायनात के लोगों, ये वो शख्सियतें हैं जिनको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 20 दफा जन्नत की बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है वो शख्सियत जिनके बारे में और जिनका तकवा तो देखो, तुम हराम खाते हुए तुम्हें परवाह नहीं है और तुम्हें सबीले लगाते हो गैरुल्लाह के नाम की, और जनाब दुनिया के अंदर हराम खा रहे हो, हराम ले रहे हो, और जिस शख्सियत को बुरा बना कहते हो उसका तकवा देखे। उनका एक गुलाम था, उसने मिठाई लाई, हस्बे आदत रोजाना कोई ना कोई चीज लाता था मजदूरी करके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह खा ली तो खुशी से कहने लगा आका आज पता है ये मिठाई कहाँ से आई है? कहा कहाँ से आई है? ये भी सही बुखारी की है हदीस। कहा ये मैंने जमाना जालियत में टेवा लगाया था, कहानत की थी, उसकी ये खुशी, आज उसका काम पूरा हुआ है, उसने मुझे ये इनाम दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का जो मिठाई मैदे में पहुंच चुकी है, अपना हाथ फअदखला यदहु कफाहु, अपनी गुद्दी पे हाथ मुंह पे डाल के वो क्या कर देते हैं और साबित कर देते हैं कायनात के लोगों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिसका पेट हराम के एक एक लुक़मे से पाक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हराम की खाई हुई चीज को फौरन फेंक दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो टेबा लगाकर कमाता है, कहानत हाथ की लकीरों पे जाते हो, मत जाओ हाथ की लकीरों पे। है गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज लाहात दिखा रहा है, कोई तोते के जरिए किस्मत आजमाई कर रहा है, क्या है मेरी किस्मत में। सुनो, इस तरह की कमाई हराम है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के फजीलत न सुनो, उनका तकवा भी देखो और अपने दिलों में तकवा बिठा लो कि आज के बाद अगर कोई सूदी कारोबार वाला है, छोड़ दे सूदी कारोबार को। कोई चोरियां करने वाला है, छोड़ दे चोरियों को, डकैतियों को, रिश्वतों को, और जनाब दुनिया के अंदर दगेबाजियों को, किसी के माल पे कब्ज करने को। सुनो, ये वो चीजें हैं जो हराम की है, कल क़यामत के दिन एक एक चीज का हिसाब देना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला 2 साल 6 माह खलीफा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और जानते हो खलीफा कैसे बने? आज अबू बकर सिद्दीक जब फौत होते हैं, दुनिया से जाते हैं, मदीने की छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं जो यतीम है। पूछा गया तुम ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारा बाप फौत हो गया हो। कहा उन बेटियों का जवाब सुनिए, तरीके दिमाग उठाए इमाम इब्न उसाकिर की, फरमाते हैं, लिखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे को देखकर वो इतना रो रही है। लोगों ने पूछा हुआ क्या है? कहा हम यतीम बच्चियां हैं, जब से हमारा बाप फौत हुआ था ये वक़्त का हुक्मरान रोजाना हमारी बकरियों का दूध दौड़कर हमें पिलाया करता था, आज हमें कौन पिलाएगा? हम रोए नहीं तो क्या करें? आज हमारा वो बाप चला गया। सुनिए कौन है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कायनात के लोगों, जब खिलाफत को संभाला, लोगों ने कहा हमने ज़कात ही नहीं देनी। कई लोग ऐसे थे जो मुर्तद्दीन ज़कात थे, वो इस्लाम से मुर्तद होने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, लोगों जो रसूलुल्लाह ईमान नहीं करे, देखो कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी दिया करता था या एक बकरी का खुद दिया करता था, आज वो भी रोकेगा। अबू बकर सिद्दीक उसके साथ जिहाद करेगा, जंग करेगा। हज़रत उमर कहते हैं, अबू बकर उससे लड़ाई करोगे जो कलमा पढ़ते हैं?
पीछे हट जाओ, ये इस्लाम की बात है। जब लोगों ने देखा, फरमाया मुसलमानों तुमने लड़ना है तो लड़ो, वरना अबू बकर अकेला उनके साथ लड़ेगा, वरना लड़ लड़ के शहीद हो जाएगा। जो ज़कात का मुनकर हो, जब लोगों ने देखा, हज़रत अबू बकर का ईमान देखा, सारे मिलकर जो ज़कात के मुनकर थे फौरन ज़कात देने पे आमादा हो गए। कौन है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ग़ज़वा तबूक का मौका आता है, फरमाया का आका ने फरमाया लाओ चंदे की जरूरत है। वो कौन था जिसने पूरे घर का सासा लाकर रसूलुल्लाह सल्लम के कदमों में ढेर कर दिया था। आका ने पूछ ही लिया, उमर क्या लाए हो? कहा आधा माल ले आए, आधा छोड़ आया। तुम क्या लाए? सहाबा से पूछते जा रहे। अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा घर का सारा असासा लेके आया हूं। काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल आलमीन किताब में लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक तारीख इब्न कसीर, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ऐसे दीवार के ना ऐसे हाथ फेरे। लोगों ने पूछा अबू बकर क्या ढूंढ रहे हो? कहा इधर मैंने सुई रखी थी, वो ढूंढ रहा हूं कहीं वो पीछे ना रह जाए, वो भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर करना चाहता हूं। आका सिद्दीक से पूछते हैं, आका कहते हैं अबू बकर घर का सारा माल लाए हो तो घर क्या छोड़ के आए हो? कहा आना उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर बाकी सब कुछ ले आया हूं। कौन सिद्दीक है जिसने पूरा माल इस्लाम पे निशावर किया? जब मुसलमान हुए थे 40,000 दिरहम के मालिक थे, 40,000 दिरहम के। जब हिजरत करने लगे 35,000 दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निशावर कर चुके थे, सिर्फ 5,000 दिरहम रह गए। और जब हिजरत कर रहे हैं उस वक्त भी जिस घराने ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, कोई गुलाम की हैसियत से, कोई सवारियों की हैसियत से, कोई जनाब खाना पहुंचाने की हैसियत से, कोई रात की जासूसी पहुंचाने की हैसियत से, वो कौन था? अबू बकर का ही घराना था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे आपकी जिंदगी पे 17 नमाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले में पढ़ाई आपकी जिंदगी मुबारक में। कौन? अबू बकर जिन्होंने कुरान को जमा किया। कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हजरत अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फज़ाइल सहाबा में लिखते हैं, अम्मन यश्तमी अबा बकरिन व उमर व आयशा, जिस बंदे को देखो अबू बकर उमर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तबर्राबाजी कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, माँ उराह अल इस्लाम, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है। ये मेरा फतवा नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल का है। इमाम जाफर इमाम बाकर कहते हैं, कायनात के लोगों, मन जहीला फजल अबी बकरिन व उमरा, जो अबू बकर और उमर की फजीलत को नहीं जानता वो सुन्नत को भी नहीं जानता। कौन कह रहा है? इमाम बाकर कहते हैं। इमाम जाफर सादक क्या कहते हैं? कहते हैं बर्रअल्लाहु फमन तबर्रा मिन अबी बकरिन व उमरा, जो अबू बकर उमर से बरी होता है वो इस्लाम से भी बरी होता है, उसका अल्लाह के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आइए वो शख्सियत है जो 22 जमादुल उखरा को 13 हिजरी है, 63 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खलीफा अव्वल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारेगार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उम्र 63 साल है। मैं अपनी मोहब्बत का पैगाम आखिर में देना चाहता हूँ कि सिद्दीक को बुरा भला कहते हो, मैं तुम्हारी जुबान पे पैगाम देना चाहता हूँ, कोई जलता है जले मैं जलावांगा, मैं तो रुतबे सहाबा दे सुनावांगा, मैं तो रुतबे सहाबा दे सुनावांगा, अज भी ने रले कल भी सन रले, दिल जिदा ना मन्ने ओ नाल मेरे चले, सुता रोजे चे यारा नू खावांगा, मैं
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، چن میرے محمد ستارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، چن میرے محمد ستارے صحابہ، سارے تو ود کے پیارے صحابہ، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کس صدیق کو برا کہتے ہو، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں دجال، میں ہوں خود جناب فرعون، میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں ان کو اپنا رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہم منکر اصحاب اور آل بیت کے میں ان کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کون صدیق ہے جب سب نفرت کر رہے تھے، جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب دنیا کے اندر کلمے سے منہ پھیر رہے تھے جو کلمہ پڑھ رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چھڑا رہے تھے جو جان نچھاور کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب دنیا کے اندر حضور بلاتے تھے جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو محبت کی پیغمبر کی محبت میں فدا ہوا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسالت پہ قربان ہو رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلا ورکر تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ زنا کیا ہو، نہ شراب پی ہو، نہ شرک کیا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلا اسلام لانے والا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ساری دنیا سے تعلق کو توڑ دیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، دنیا کے لوگوں جس نے سب سے پہلے دولت نشاور کی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے بیٹی نبی کو دی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گھر بال لٹایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گود پہ لٹایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے کندھوں پہ اٹھایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے 3 دن 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن نے ساری دنیا سے جدا ہو کر رب نے محبوب کو آپ کی گودی پہ سلایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے خلیل آقا نے بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے سسر بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینہ میں مکہ میں کائنات کے لوگوں سفر میں حضر میں قدم قدم پہ ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضور کی مرضی پہ اپنی مرضی فدا کر دیتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رات کو چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو جو ساتھ ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر میں آپ کے ساتھ تھا، احد میں، خندق میں، احزاب میں، تبوک میں، یرموک میں، تمام غزوات میں جو آقا کا ساتھی تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دکھ سکھ میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے اشارے میں قربان ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نسلیں جنہوں نے قربان کی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو معراج کی تصدیق کی تھی، اللہ نے جب معراج کرائی تو اللہ میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا جو تصدیق کرے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو آج بھی روزہ رسول پہ سویا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب روزہ محشر ہوگا جناب سورج پورا عروج پہ ہوگا، زمین پوری انتہا میں تپ رہی ہوگی، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر تو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو؟
کا حساب شروع کر. اللہ فرمائے گا کس سے میں سب سے پہلے حساب شروع کروں؟ جو امت میں سے سب سے پہلے حساب کے لیے پیش ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.